Good afternoon, class. Today, we already know about the topic that we have to discuss, and that is the most important topic, especially in the terms of the geography, that is called the El Nino and the La Nina. See, basically, the El Nino is the condition in which actually the rainfall is very minimal, or you can say the rainfall is very short, especially in the terms of the monsoon in our country. When it comes to the La Nina, it is something, a phenomenon occur in which the more rainfall is going to get occurred, especially in our country. But the most important thing is that these two, the El Nino and the La Nina, is basically correlated with the India, but none of the effect is going to be get happened, especially in our country. These things are going to be get occurred into two different parts of our world, that is the South America, including with the Australia itself. From the very beginning, if we go through these topics, we will understand, we have to be understand with the very basic concept that what is the normal phenomenon in the El Nino that actually occurs. Like अगर आप इस चीज को देखोगे तो सर एल नीनो और ला नीना ये हमारे पास दो जो एस्पेक्ट्स हैं, इन दोनों के अलावा अगर आप समझने की कोशिश करो तो आप इस चीज को जरूर देखना कि सर ये दो वो एस्पेक्ट्स हैं जो साल के किसी भी हिस्से में होते हैं। लेकिन दिक्कत ये है हमारे पास कि सर अपार्ट फ्रॉम दीज टू फेनोमेनन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर हमारी नॉर्मल कंडीशन कैसी चलती है, या हमारी अगर एल नीनो और ला नीना नहीं आती, बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू वेरी बेसिक टॉपिक, एंड दैट टॉपिक्स आर अबाउट द विंड. So the very basic topic that actually needs to understand with the La Nina and the El Nino is called the trade winds. Sir, अगर आप trade winds को समझने की कोशिश करो तो before that we need to understand one very easy concept, and that is called the winds distribution. And on the entire earth, अगर आप winds के पैटर्न को देखोगे तो हमारे इंडिया में खास करके और इवन वर्ल्ड में भी दो तरीके की विंड पैटर्न आपको जनरली देखती है. That is, one is called the easterlies and the other one is called the westerlies. जो easterlies होगी वो जब भी आप देखोगे तो सर most of the time it actually blows around the equator, and when it comes to the westerlies it generally blows away from the equator. But the very basic concept is कि sir why we are actually understanding the easterlies and the westerlies. So we need to actually start the things फ्रॉम द वेरी बेसिक कि सर ईस्टर्लीज के इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ईस्टर्ली इज द विंड जो एक्चुअली आपके इक्वेटर के आसपास ब्लो करती है, और इसी ईस्टर्ली का एक जनरल नेम आपको देखने को मिलेगा, एंड दैट नेम इज कॉल्ड योर ट्रेड विंड्स. क्या बोलेंगे उसको? ट्रेड विंड्स. द वेरी बेसिक थिंग इज कि सर ये ट्रेड विंड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन द इंटायर ईयर, पूरे साल जब भी आप देखोगे तो दिस ट्रेड विंड्स एक्चुअली ब्लोज फ्रॉम दिस पार्ट to this part, or you can say कि sir it always blow from Peru towards the Australia. ये सालों भर आपको हमेशा जो है from the South American part to the Australian part आपको हमेशा ये blow होती हुई दिखेगी, and this is the one which is actually the responsible thing in the La Nina and the El Nino. From the very basic thing, आप अगर इस चीज को ध्यान दो तो सर the South American part and the Australian part, in between this we are having an ocean, and that ocean named with the which ocean it is? The Pacific Ocean. आप देखोगे सर when this is the Pacific Ocean, in between the water is there. आपको पता है कि सर इसके बीच में अगर आप देखोगे तो पानी आपको जो है वो हमेशा देखने को मिलेगी, and this water is very important because somehow यही आपकी वाटर जो है वो हर साल आपकी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड के कई सारे हिस्सों में आपको बारिश लेकर के आती है. ऑन एन जनरल फेनोमेनन, जब ये एल नीनो और ला नीना आपकी नहीं आती है, इन दैट कंडीशन अगर आप इस चीज को फील करोगे तो आपको एक बहुत बेसिक सी चीज दिखेगी, दैट द ट्रेड विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम द साउथ अमेरिका टुवर्ड्स द ऑस्ट्रेलिया. इन बिटवीन एक छोटी सी फेनोमेनन क्या होती है कि सर जब भी आपकी हीट के कारण, मतलब आपको जब भी यहाँ पे दिखोगे आप अगर, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हीट वी कैन ऑब्जर्व वन थिंग कि सर हीट के कारण जो पेरू, या मैं ये कहूँ कि सर जो आपकी चिली और इक्वाडोर की जो रीजन्स है, यहाँ की पानी जो है वो क्या होती है आपकी गर्म होती है. जब ये पानी आपकी यहाँ से गर्म होगी
तो द ट्रेड विंड्स प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। ये ट्रेड विंड्स क्या करेगी, इस पानी को पेरू और चिली से मूव करवाना स्टार्ट करेगी एंड इट मूव्स टुवर्ड्स विच कोस्ट, टुवर्ड्स द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। ये कौन सी कोस्ट पे आकर के मूव करेगी सर, आपकी ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे। इन बिटवीन क्या होता है कि जब ये पानी इस कोस्ट पे आती है तो ऑब्वियसली जो है वो क्या होगा, आपका यहाँ पे हीट जनरेट होगी एंड दिस एक्चुअल वाटर यूज्ड टू राइजेस अप। द वेरी बेसिक थिंग जिसको हमने समझने की कोशिश की, सर हमने एक पॉइंट देखा कि जो ट्रेड विंड होती है वो जनरली वाटर को, स्पेशली हॉट वाटर या वार्म वाटर्स को, इट एक्चुअली डिस्प्लेसेस फ्रॉम द साउथ अमेरिकन कोस्ट टू द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। देन this water actually gets heated up and rises in the sky, and later on it forms the cloud, and so on the Australian coast actually receive the rainfall in a very good manner. On the same condition, अगर आप इसको देखोगे तो सर जब वाटर हमारे डिस्प्लेस हुई है फ्रॉम द साउथ अमेरिकन कोस्ट टू द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, तो दिस एरिया इज एक्चुअली इन लो प्रेशर जोन। आपको पता है कि सर द वाटर सरफेसेस आर एक्चुअली गेटिंग हीट बट द लोअर वाटर्स आर एक्चुअली हैविंग अ लेस टेम्परेचर एंड दे आर एक्चुअली कोल्ड। जब भी यहाँ लो प्रेशर का क्रिएशन होगा, यू विल गेट टू नो कि सर नीचे से तुरंत ये पानी जो है वो ऊपर की तरफ आएगी, दैट इज अ हाई प्रेशर जोन, और इसको नॉर्मल करने की वो क्या करेगी सर, आपको कोशिश करेगी। जैसे ही हाई प्रेशर जोन आपकी नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी, इट विल कैरी अ न्यूट्रिएंट्स एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर बेसिकली द फूड आइटम्स ऑफ द फिशेस, सो ऑन। व्हेन द न्यूट्रिएंट्स आर गोइंग टू गेट अप टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरियाज टू मेंटेन इट इन अ नॉर्मल मैनर, इसके पीछे पीछे आपकी फिशेस जो है वो भी साउथ अमेरिकन कोस्ट पे आती है, एंड इन दिस वे द फिशिंग इंडस्ट्री एक्चुअली रन्स वेरी स्मूथली ऑन द साउथ अमेरिकन कोस्ट। दिस इज द नॉर्मल phenomenon. But sir, when actually it comes with the El Nino impact on that particular condition, every pattern is going to be get changed. Everything is going to be changed in a different way. And that starts from the movement of the trade winds. Sir, when we go with the movements of the trade wind, अगर आप इसको देखेंगे तो this trade wind which actually blows from the South America to the Australia is going to be get weakened. जैसे ही ये आपकी वीकेंड होगी, सिंपल सी चीज है कि इन दिस कंडीशन अगर आप देखोगे तो सर जब हवा कमजोर होगी तो इट इज नॉट गोइंग टू बी गेट एबल टू डिस्प्लेस द वाटर फ्रॉम दिस कोस्ट, एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी गो विद दिस, आप देखोगे कि सर ये पानी को कभी भी अब डिस्प्लेस नहीं करेगी। इन दैट कंडीशन जो नॉर्मल फिनोमेनन में हमारी वाटर डिस्प्लेसमेंट साउथ ऑफ आपकी अमेरिका कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो रही थी, दिस टाइम ये वाटर का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जब ये वाटर का डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं होगा तो इन दैट कंडीशन द वार्म वाटर और द हॉट वाटर इज एक्चुअली गोइंग टू राइज इन up at the South American coast, and this creates a heavy rainfall to this coast. But on the same condition, if we go through the Australian part, जब यहाँ पे बारिश नहीं हुई तो it will create a drought-like condition. Which condition it will create? A drought-like condition. Among this, जब आप देखोगे तो एक हिस्से पे बहुत बारिश हो रही है और दूसरे हिस्से पे आपकी बारिश बिल्कुल ना के बराबर है। In this phenomenon, जब आप देखोगे तो इट इज द सेम कंडीशन जब इंडिया में भी आपके मॉनसून विंड्स आने का टाइम होता है, और सेम टाइम पे आपकी जो है वो ऑस्ट्रेलिया जब ड्राउट में आती है तो इन द साउथ पैसिफिक ओशन, विच ओशन वी आर टॉकिंग अबाउट, इन द साउथ पैसिफिक ओशन, जब आप देखोगे तो हियर द लो प्रेशर एक्चुअली अकर्स। और एक चीज इसमें और है कि सर साउथ पैसिफिक ओशन में जब ये आती है तो लो प्रेशर क्रिएट होती है, और ये लो प्रेशर ना आपकी बहुत पावरफुल होती है, स्पेशली द लो प्रेशर दैट एक्चुअली क्रिएट्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जब भी ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आपकी लो प्रेशर जो क्रिएट हुई और जो साउथ पैसिफिक में लो प्रेशर क्रिएट हुई, ये ज्यादा पावरफुल है, एंड दैट्स द रीजन कि जो भी विंड्स हमारी मेडागास्कर के पास से आपकी इंडिया की तरफ आ रही थी, नाउ दे आर गोइंग टू बी गेट डिफ्लेक्टेड, और ये डिफ्लेक्ट होकर के सीधे किसके पास आएंगे, आपकी टुवर्ड्स द साउथ पैसिफिक ओशन,
सो दैट कि इसकी कंडीशन को वो थोड़ा नॉर्मलाइज कर सके। और जैसे ही आपकी मॉनसून विंड साउथ पैसिफिक की तरफ स्विच करेगी, ये इंडिया में एंटर नहीं कर पाएगी। एंड दैट्स द रीजन कि जब ये इंडिया में एंटर नहीं करेगी तो सर इंडिया में मॉनसून जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिस phenomenon is actually called the El Nino। क्या बोलेंगे इसको? El Nino। One more condition is there कि sir generally two islands are also which are actually intact with this। The very first island that is called the Tahiti। कौन सी island है सर आपकी? Tahiti, which is in the central part of the South America and the Australia। And the second that is at the upper region जिसको हम लोग एक नाम देते हैं Darwin। These two islands are very important, the Tahiti and the Darwin, because the Tahiti creates actually is in low pressure and the Darwin is in high pressure। So आप इससे भी correlate कर सकते हो कि when actually the monsoonal winds reaches up to the low pressure zone of the Tahiti or the South Pacific Ocean, this phenomenon is called the El Nino। और इस कारण से दो ओशियंस के वाटर सरफेस की टेम्परेचर भी चेंज होगी। इंडियन ओशन में आपकी जनरली हाई प्रेशर विंड्स का क्रिएशन होगा और पैसिफिक ओशन में जनरली आपकी लो प्रेशर क्रिएशन होगा। कोई डाउट यहां तक? दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड योर एल नीनो। सो द वेरी सेकंड टॉपिक दैट इज कॉल्ड द ला नीना। In the very first topic, we already understand this thing that in the El Nino, the general rainfall is going to be get very minimal or very less in the especially the countries like the India as well as the other countries which are just correlated with our own country. But the very second thing that we need to understand is the La Nina impact. In the India itself, from the 2020 till the 2024, the La Nina impact is there. In this year also, we are going to experience the La Nina itself. But what exactly the La Nina is? We need to understand कि सर ये La Nina है क्या। तो हमने जस्ट एक थोड़ा सा ट्विनिंग किया और हमने चेंज किया कि सर दिस विंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द ट्रेड विंड्स। ये ट्रेड विंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर। Why it is actually important? Because the trade winds movement when it gets weakened, जब ये कमजोर आपकी होगी तो सर it will create the El Nino, and when it becomes more powerful it will create which type of phenomenon? That is actually called the La Nina। अब सर ये La Nina है क्या? हमने ये तो समझा कि सर जब ये ट्रेड विंड कमजोर होगी तो एल नीनो को ये फॉर्म कर देगा, लेकिन सिंपल सी चीज है कि when we go through this हम ये जरूर समझते हैं कि सर जब भी हम ट्रेड विंड्स के वीकेंड की बात करते हैं तो इट क्रिएट्स द एल नीनो, एंड व्हेन इट एक्चुअली गेट्स पावरफुल हमने इसको तुरंत बोल दिया कि सर इट इज एक्चुअली कॉल्ड द व्हिच वन? द पावरफुल फॉर्म द ला नीना। आप सिंपल से लाइन में अगर समझने की कोशिश करो कि व्हेन द इंटायर अकरेंस ऑफ द एल नीनो is going to be turned up और changed up, जब ये पूरी phenomenon आपकी change हो जाती है, आपकी जो है वो twist हो जाती है, या मैं ये कहूं कि जब ये trade winds powerful हो जाती है तो on the same condition at the Australian coast जो rainfall आपको देखने को मिलेगा, this rainfall is very maximum, ये बहुत maximum form पे आपको दिख सकते हैं। And same condition sir, in the La Nina impact, the Australian coast receives the rainfall on a maximum manner, and on the same condition in India also the rainfall will be very maximum। लेकिन एक चीज है कि सर इसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री में क्या है या बाकी जगहों पे क्या है? सर बारिश जब नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाए तो वो ला नीना इम्पैक्ट होता है, और इंडिया में खास करके जब ट्रेड विंड्स या बाकी अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया पे भी ये रेनफॉल बहुत होगा और इंडिया में भी बहुत होगा। इसका एक सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस मैं आपको बताता हूं कि सर व्हेन द ट्रेड विंड्स बिकम मोर पावरफुल, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि सर ये ट्रेड विंड्स जब मजबूत होगी तो ये अर्थ के रोटेशन को स्लो डाउन कर देगा। सर द वेरी बेसिक थिंग दैट एक्चुअली वी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि सर ये ट्रेड विंड्स हमारी जो होती है वो जनरली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ईस्टर्न साइड एंड देन इट ब्लोज टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड। लेकिन अगर आप सेम अर्थ के रोटेशन को देखोगे तो सर अर्थ का रोटेशन जस्ट ऑपोजिट आपका चलता है, दैट एक्चुअली मूव्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट एंड सो ऑन। जब ट्रेड विंड्स पावरफुल होती है तो ये दोनों कोलाइड करती हैं, अर्थ का रोटेशन भी एंड द मूवमेंट ऑफ द ट्रेड विंड्स, ड्यू टू विच जो मूवमेंट होती है हमारी वो पूरी आपकी स्लो डाउन हो जाती है, एंड इट इज ओनली फैक्टर
ड्यू टू विच वी कैन एक्चुअली सी और वी कैन फील कि हमारी जो अर्थ की रोटेशन है वो विंड्स के कारण क्या हो चुकी है, आपकी स्लो डाउन हो चुकी है. दिस इज इट फॉर द ला नीना एज वेल एज द एल नीनो. थैंक यू.